Okay. Now, if you will go through it, even the assignments you can go through, you will find that there are many ways. There are each has its own advantage and each has its own disadvantage. Disadvantage of one can be advantage of other, or advantage of other can be disadvantage of the next. And this makes sometimes that you need to use multiple ways to find out the impact. This needs, you should apply for more than one type of thing to do the study. And therefore we have got so many models and parameters. I told you in very first lecture, or very in the beginning, what we call as a model. Now I will suggest you to go for the book which is given, that is what? Vogel's. And you will find that there are various models are mentioned. Actually that Vogel edition, second edition, is also very old edition. Almost 7-8 year old edition it is. Thereafter so many new models and new things are there. Then I will suggest you to use the reference techniques what I have suggested you, particularly use PubMed and Google Scholar and all other such techniques. That will help you to find out the latest models for different. You go for in vivo model, in vitro model, and all this model, and you make the list of that. Now for your ease, because there are so many models, okay, and it can be a problem to you. If you want to read it in that way, then it will be very difficult. For your ease, we'll make it, I'll suggest you to go for a table, okay, and divide this as an assignment among yourself, okay, that this is the, because you learn now basics. Wherever you will have difficulty, then I'll be discussing with you, because now it can be boring for everyone. Now your class should make it as an assignment. Now this is a big assignment. You convert all whatsoever information is there, that is you convert into tabular form. Select one topic, okay. Example, what are your topics? Cardiovascular system example, let us go for that, okay. I'll tell you what are the topics. So what you will do in that? You have to think on each and every word which is given in that, and you have to apply all your basic knowledge which you have studied in earlier pharmacology and pathology and HEP. Now let us go one by one, okay. What we will do is, we will make a table, okay. What sort of table will go for? Make a spreadsheet or Excel sheet, whatsoever possible. Just a minute, what I'll give you is a okay. Can you see blank paper over here? Yes, sir. Okay. Now what I'll do is, now very first thing, very first now screening start, that is of diuretic, okay. Now what is diuretic? What is diuretic? Yes, what do you mean by diuretic? Concentration maintained. Huh?
Slightly loudly, Nagesh. Sir, iron concentration maintain diuretics maintains iron concentration. Diuretics maintain iron yes. Okay, Akshay For says urine affecting urine volume. excretion. Anybody else? Anybody else? Those which excrete sodium and water. Okay. वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. So basically what it is, the simplest definition of diuretic is what? Which increases urine output. Very simplest one. Okay, yes, the drug that increases volume of urine that is produced by kidney. Now suppose I am asking you to do this, how you will be doing? What is your idea? Yes, any idea? Hello, please respond fast. If somebody asks you, Hello, sir. yes, Akshay is Sir, correct. please explain what to do. Akshay is correct. Akshay says that we will first study current urination behavior. Means what? What you will do? You are doing it on? You are doing it on? Animals. Very good. So how you will check the current urination behavior? How you will do it? If I ask somebody from your side, then definitely I can ask कि भाई जब यूरिनेशन के लिए जाओगे तो हमको बताना. तो उसमें क्या पैरामीटर्स क्या लोगे अभी? Frequency of urination. फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन. और तुम्हारा एम फ्रीक्वेंसी ऑफ यस, नागेश ने लिया यूरिन वॉल्यूम, है ना. तुम्हारा एम फ्रीक्वेंसी है कि वॉल्यूम है यूरिन का? आप डायूरेटिक के डेफिनेशन में क्या देखते हो? Volume. वॉल्यूम देखते हो, है ना. तो अच्छा, अभी आपका मॉडल क्या है? वापस मैं बोल रहा हूँ, मॉडल क्या लिया आपने? एनिमल मॉडल, रैट लिया, माइस लिया, जो भी लिया. अब इसमें कैसा करोगे? हेलो, हाँ, विदाउट डायरेटिक. अभी वॉल्यूम लेना है ना पहले तो. रैट ने जो यूरिन पास किया उसका वॉल्यूम तो कैसे लेंगे रैट का?
कंटेनर में। अच्छा, रैट कहाँ रखेंगे? We'll make it to urinate in particular space. Very good, good idea. Okay. इसमें और कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अपने को? यस, लॉस में भी इश्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। सी, टीचिंग इज दैट वे वेरी इजी। माई एम इज टू इग्नाइट योर साइंटिफिक माइंड। कल हो सकता है, अभी तो अवेलेबल है अपने पास, है ना? नागेश बोलो ना, जैसे उसने बोला लॉस हो सकता है। लॉस क्यों होगा अक्षय? लॉस क्यों होगा? सर एनिमल में मतलब लिविंग एनिमल है ना, तो फिर वो मतलब हम ऐसा बोल नहीं सकते कि उसको यहीं पे करना है तेरे को, मतलब वो मतलब मूवमेंट कर सकता है और फिर लॉस हो सकता है। अच्छा, और कोई कारण लॉस का? मतलब होने के बाद भी कलेक्शन का बराबर नहीं हुआ, मतलब ड्रेनेज होना चाहिए, वो जहाँ पे कलेक्ट किया है वहां से कंटेनर में बराबर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, स्प्रेड और एब्सॉर्ब बाय द प्लेस। इवापोरेशन, इवापोरेशन हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली। है ना? तो उसके लिए एक एपरेटस आता है ना? दिख रहा है क्या यहाँ पे कुछ? यस सर। क्या है ना, क्या नाम लिखा है उसका? मेटाबॉलिक केज। मेटाबॉलिक केज, है ना? जैसे जैसे एडवांस लेने जाएंगे वैसे वैसे जो 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 तुम्हारी डिफिकल्टी आपने बताई वो साइंटिस्ट को भी आई थी कभी ना कभी, तो उन्होंने उसको सॉल्यूशन निकाला। ये बेसिक मॉडल है इसका, ठीक है? सिंपली एक बड़ा फनेल है, फनेल पे एक जाली होगी, देयर विल बी वन नेटवर्क ऑन इट, ठीक है? देन वाटर विल बी इन सच ए वे कि वाटर का ड्रॉप यहाँ नहीं गिरेगा। अब आप वाटर ही नहीं दोगे तो वो डायूरिसिस होगा कैसा, उसका यूरिन फॉर्म कैसे होगा? वाटर तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, जब वाटर चाहिए तो वेन एवर दे गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर देयर इज चांस ऑफ स्पिलेज ऑफ वाटर। तो आप जो यूरिन कलेक्ट कर रहे हो उसमें यूरिन है कि वाटर है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना? तो द सॉल्यूशन इज मेड लाइक दैट कि वो खाली छोटा सा मुंह डाल सकता है उधर पानी पीने के लिए, और अगर कोई ड्रॉप गिरा तो वो इधर गिरेगा। अब ये ड्रॉप इधर गिरेगा, इधर भी वो मेजर होगा। मेरा कर्सर दिख रहा है वहाँ पे? यस सर। मूव हो रहा है। अगर पानी का कोई ड्रॉप गिरा तो इधर होगा। इससे इससे चीज़ क्या क्या करते हैं, ये वाटर, ये कितना वाटर इनटेक किया वो मेजर हो जाएगा, क्योंकि जो जो चीज़ यहाँ लॉस हो गई वो माइनस कर दी, ठीक है? फिर फूड आप कैलकुलेट करके दो, फूड इनटेक मेजर हो जाएगा, और फूड भी ऐसे ही जाएगा कि रैट वहाँ जाएगा, और फूड अगर कुछ भी गिरेगा तो वो इसमें नहीं मिक्स होगा, बराबर? उसकी अरेंजमेंट ऐसी रहेगी कि रैट खाली मुंह डाल के फूड खा सकता है, पर रैट नॉर्मली जब फूड खाता है तो बिस्किट जैसा या और भी ये होता है, तो जब वो दांत से बाइट करता है तो कोई ना कोई उसका पीस जो है वो नीचे गिर जाता है। तो अगर ऐसा गिरेगा तो वो भी वॉल्यूम को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो आपको वॉल्यूम ठीक से मेजर नहीं होगा। उसके लिए ना फूड आएगा ना वाटर उसमें आएगा, और यूरिन जो है वो यहाँ जब यूरिन करेगा तो नीचे जाएगा, और नीचे एक स्पेसिफिकली छोटी बॉटल जैसे इसमें होगा जहाँ से इवापोरेशन नहीं के बराबर होगा।
यू गॉट दिस? हेलो, यस सर। ठीक है। अब अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कर दिया आपको, तो डायूरेटिक एक्टिविटी ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। चलो अभी आपको असाइनमेंट शुरू किया मैंने, डायूरेटिक एक्टिविटी आपको लेना, क्या करोगे इसके लिए? क्या करोगे? भैया फास्ट। क्या करोगे उसके लिए? एनिमल मॉडल सेलेक्ट करो। वेरी गुड। एनिमल मॉडल सिलेक्ट किया, कौन सा एनिमल का मॉडल करेंगे? सर रैट। हाँ रैट सर। ठीक है, रैट कर सकते हैं, माइस कर सकते हैं। और बोलो, एक आपने फाइनल कर लिया, फिर सर वॉल्यूम देखेंगे। हाँ नॉर्मल वॉल्यूम देखेंगे सर। नॉर्मली देखेंगे, हर एक को सेम वाटर देंगे, सेम फूड देंगे, है ना, सबको फूड मेजर करके देंगे, सबको वाटर फिक्स वॉल्यूम देंगे। वेरी गुड अक्षय, ग्रुपिंग सिलेक्शन ऑफ एनिमल, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एनिमल्स के ग्रुप करेंगे, कौन से ग्रुप बनाएंगे? सर नॉर्मल, हम्म नेगेटिव, हम्म शाम। शाम कहाँ करते हैं? इन विट्रो। शाम इन विट्रो में करते हैं। शाम कहाँ करते हैं? हम्म चलो अच्छी लाइन पे जा रहे हो फिर भी, ठीक है। हेलो, एनीवे ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको ऐसा एक एक करके बनाना है। ये हो गया इन वाइवो मॉडल। क्या इसका इन विट्रो मॉडल बन सकता है? सर नहीं सर, किडनी का फंक्शन होना जरूरी होगा सर। वेरी गुड, डेड एनिमल नहीं यूज कर सकते उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डेड एनिमल नहीं, अच्छा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस डायूरेटिक एजेंट्स? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक एजेंट्स क्या क्या है? अब भैया जीपैट वाले बोलो फटाफट। सर कार्बोनिक एनहाइड्रेट कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। इनहिबिटर, वेरी गुड। और पोटेशियम स्पेयरिंग, वेरी गुड। और
तो मेजर अपन अगर अपने थोड़ा सा बेनिफिट के लिए कैलकुलेट करना उसको कोरिलेट करना चाहेंगे तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन वेरियस ट्रांसपोर्टर्स, है ना। वेरियस ट्रांसपोर्टर्स, वेरियस ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स, कर सकते हैं ऐसा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। और दूसरा एक बोल सकते हैं एंजाइम पे एक्ट करने वाला। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट क्लासेस है अपने। फिर तीसरा क्या था, सलाइन था अपना, ऑस्मोटिक। ठीक है, ऑस्मोटिक में क्या होता था, ऑस्मोटिक में क्या होता था, सर ओवरऑल ग्लोमेरुलस पे एक्ट करते हैं, ओवरऑल नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन को अभी भूल जाओ, अभी सभी ड्रग के नेफ्रॉन पे एक्ट करते हैं। सभी नेफ्रॉन पे ही एक्ट करते हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है अभी कि जो भी ड्रग अपने हैं अपन उसको क्लासिफाई कैसे करने हैं। तो अलग अलग ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करने वाले। लूप डायरेटिक कहाँ एक्ट करते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले पे क्या करते हैं वो, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हाँ भैया, पर उस लूप पे क्या करते हैं, Inhibition of sodium, potassium, chlorine symptoms. हाँ यस यस, Inhibition of sodium, potassium, chlorine symptoms. वेरी गुड, इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सिम्पोर्ट। तो मैं उसको बोल रहा था ट्रांसपोर्ट पे एक्ट करते, तो एक्सेप्ट करोगे उसको, मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो। हेलो, अगर मान लो मैंने इतना डिटेल नहीं पढ़ा है तुम्हारे जितना, मैं इतना ही बोलूंगा कि वो एक ट्रांसपोर्टर चैनल पे एक्ट करता है, तो उसको एग्री करोगे, एक्सेप्ट करोगे। हेलो, विल यू एक्सेप्ट? यस सर। अरे वो सिम्पोर्ट है, वो चैनल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टर है कि नहीं है? सर ट्रांसपोर्ट चैनल है सर। ट्रांसपोर्टर है ना। यस सर। तो अगर उस ट्रांसपोर्टर पे एक्ट कर रहा है और मेरे पास अगर ऐसी मैकेनिज्म है कि अगर सोडियम जा रहा है, शिरसट इकडे, याच्यावर नवले सरांच्या सह्या घ्या हं? आणि महापळे सरांकडे द्या। जस्ट अ मिनिट, नाही माझा क्लास चालू आहे, त्यांना म्हटलं 2 मिनिटं थांबा मुलांना। धन्यवाद। त्याच्यातलं फक्त पडू देऊ नका, व्यवस्थित ठेवा। हेलो, हाँ, तो मेरे पास अगर ऐसी मैकेनिज्म है कि सोडियम आयन अगर जा रहा है इस साइड से उस साइड में या उस साइड से इस साइड में, तो मैं मेजर कर सकता हूँ। और मेरे पास एक आदमी है जो मेरे को वो ट्रांसपोर्टर्स खाली बना के दे सकता है, जो सेल मेम्ब्रेन पे होता है। या तो कोई मेरे को सेल्स दे देगी नेफ्रॉन के, वैसे के वैसे सेल्स बना के दे देगा, तो वो बोलेगा कि ये मेरे पास नेफ्रॉन की सेल्स हैं, उसमें से आयन ट्रांसफ़र होते हैं, तो मुझे आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं डायूरेटिक की स्टडी कर सकता कि नहीं कर सकता?
हेलो, भैया डायरेटिक की स्टडी कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? सर ट्रांसपोर्टर तो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर अगर मिला तो कर सकते हैं ना अपन। यस सर। वो कैसी रहेगी, इन विवो है कि इन विट्रो है? इन इन विवो सर। इन विवो का मतलब क्या नागेश? सर एनिमल के अंदर एनिमल पे मतलब लिविंग एनिमल। लिविंग होल एनिमल। यस सर। मुझे किसी ने ट्रांसपोर्टर दिया या नेफ्रॉन की सेल दिया, यस सर। तो वो इन विवो है कि इन विट्रो है? सर इन विट्रो सेल। इन विट्रो है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन पहले था कि अपन क्या डायरेटिक की स्टडी इन विट्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपने क्या बताया था? सर इन विवो बताया था। इन विवो बताया सर। इन विवो बताया था। अक्षय ने क्या बोला? इट इज़ नॉट पॉसिबल बोला था ना? यस सर। अभी हुई क्या पॉसिबल अपने को? यस। हुई ना? तुम्हारा इसका बुक खोलो फटाफट। होगेल का बुक खोलो। ओके सर। निकालो डायरेटिक्स चैप्टर। यस सर। क्या बोल रहे उसमें? सर एक्टिविटी ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट। फटाफट देखते जाओ उसमें। अच्छा, कितनी है उसमें? इन विवो मेथड, इन विट्रो मेथड है क्या कुछ दी हुई? यस सर। इन विट्रो मेथड है सर। इन विट्रो भी दी है? यस सर। कैसी है? जो मैंने बताई वही है? अच्छा, देख लेना उसको। हेलो। यस सर। तो आपको ये मालूम पड़ेगा जब डायरेटिक्स इज इजीएस्ट वन कि आप इन विट्रो में क्या कर सकते हो, इन विवो में क्या कर सकते हो। समझे? यस सर। हाँ, तो अपन क्या करने वाले एक्चुअली, व्हाट इज आवर एम इज, अपना एम ये है अभी कि whenever we are studying हमने अभी शुरू किया डायूरेटिक पे। ओके, दिख रहा है ना टेबल? हेलो। यस सर। दिख रहा है सर।
इसके अपन क्लासिफिकेशन करेंगे इन वीवो, ठीक है। हाँ सर। इन वीवो में सीरियल नंबर हमने डाला पहला, एनिमल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, रैट, माइस, जो भी होंगे जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है। उसके लिए अपने को इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, उसको पहले हम बोलेंगे मॉडल नेम। किसी में दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा। उसके लिए अपने को इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट क्या लगेंगे, उसमें स्पेशल केमिकल क्या लगेगा, अगर केमिकली इंस्ट्रू है या जो भी है। हाउ टू एस्टैब्लिश, व्हाट इज ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ दैट मॉडल, कि जैसे डायूरिटिक में कुछ नहीं करना है, कीप इट इन, आपको क्या लगेगा, एनिमल हमने लिया रैट, ठीक है। मॉडल को वैसे कोई खास नाम नहीं है इसमें, खास तो आपको लगेगा क्या, मेटाबॉलिक केज। केमिकल कुछ नहीं लगेंगे, क्यों, एक्सेप्ट आपका ड्रग, तो ड्रग अपन कहीं लिख नहीं रहे हैं। जो ड्रग के अलावा वाले केमिकल है मॉडल इंड्यूस करने के लिए वो लिखेंगे। प्रोसीजर क्या है, उसमें दी होगी प्रोसीजर कि एनिमल को इतने इतने देर के लिए मेटाबॉलिक केज में रखो, उसका क्या क्या लो, क्या क्या नहीं लो। फिर उसके पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स अपन ले सकते हैं इसके, एक यूरिन आउटपुट ले सकते हैं, दूसरा क्या ले सकते हैं, फूड कंजम्पशन ले सकते हैं मेटाबॉलिक केस से, फूड कंजम्पशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यस सर। वाटर कंजम्पशन ले सकते हैं, यस सर। अच्छा, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, अगर जो तुम्हारे केमिस्ट्री वाले प्रोजेक्ट करने हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस वाले हैं ना, बाकी लोग करने वाले हैं, तो उनको दे सकते हैं आप, भैया ये हमको कर दो, इसमें क्या क्या है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कर सकते हो। हेलो, यस सर। हाँ, अगर ये हो गया आपका, तो क्या आप बोल सकते हो कि मान लो ये पोटेशियम स्पेयरिंग है, यूरिन एनालिसिस के बेस पे आप मैकेनिज्म बोल सकते हो उसकी, यस सर। तो ये पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। फिर उसका आपका रिजल्ट्स कंक्लूजन क्या रहेगा, आइदर देयर इज अ डाययूरेटिक एक्शन दैट इज इंक्रीज, ओके। ऑब्जर्वेशंस क्या रहेंगे, ऑब्जर्वेशन वही रहेगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसका रिजल्ट क्या रहेगा आपका, ये आपके अगर टेबल हो गए तो आपके सब मॉडल एक एक टेबल में बन जाएंगे। जैसा इन विवो का बनेगा वैसा इन विट्रो का बनेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सर ऑब्जर्वेशन में क्या आना चाहिए? अच्छा, अभी अपने ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होगी तुम बताओ नागेश। सर डायूरेटिक्स के बाद इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ऑब्जर्वेशन में आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, यूरिन आउटपुट, यस, अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन। अगर आप टेबल और बनाते, ऑब्जर्वेशन का एक टेबल बनाते हो पैरेलली, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या लिखा आपने, आपने ग्रुप बनाए थे, ग्रुप बनाए थे ना नागेश? यस सर। अच्छा, उस ग्रुप के कैसे ऑब्जर्वेशन लेंगे? ग्रुप 1 नॉर्मल, नॉर्मल का भी आपने क्या लिया, यूरिन आउटपुट, फूड कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, यूरिन एनालिसिस।
ग्रुप 2 सेम यूरिन आउटपुट, ग्रुप 2 मतलब कंट्रोल वाला। अब इसमें नेगेटिव कंट्रोल तो है नहीं, क्योंकि अपन डायबिटिक्स ये कोई इंड्यूस कर नहीं रहे डिसीज, है ना, सो वी आर नॉट इंड्यूसिंग इट, ठीक है, तो इसलिए मॉडल नहीं आया, है ना। पर ये अगर मान लो अपनी एपिलेप्सी का होता तो हम बोलते इसको कि या तो इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रोशॉक कन्वर्जोमीटर बोलते हैं उसको, जिससे इलेक्ट्रिक का शॉक देके कन्वर्जन आते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट में आएगा आपने। अगर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट नहीं लगेंगे, आप ऑब्जर्वेशन बाहर कर रहे हो और आपने केमिकल दिया स्ट्रिक्निन, तो इसमें आ गया मॉडल, दैट इज केमिकली इंड्यूस्ड मॉडल, मॉडल का नाम आ गया केमिकली इंड्यूस्ड मॉडल। ब्लड प्रेशर का मैंने कल बताया आपको कि डोका सॉल्ट इंड्यूस्ड मॉडल। ओके, एक और चीज रहेगी, हाँ प्रोसीजर आ गई इसमें, सॉरी, ठीक है। अभी जैसे ब्लड प्रेशर का कल मैं बता रहा था, ब्लड प्रेशर के टाइम पे और भी देखेंगे, पर अभी वापस मैंने किया एनिमल क्या, रैट, मॉडल नेम क्या, डोका सॉल्ट इंड्यूस। इंस्ट्रूमेंट, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपने बताए थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट देखे थे अपन ने, या तो नॉन इन्वेजिव या तो इन्वेजिव, ठीक है। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो आएगी, फिर इसमें केमिकल, दोनों में अपने को ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, अपने को ब्लड प्रेशर इंड्यूस करने के लिए हमने दिया डोका सॉल्ट, और उसके साथ क्या किया, अगर नॉन इन्वेजिव है दोनों में एक किडनी निकाल, यूनिलैटरल, यूनि मतलब एक, लैटरल मतलब साइड की, ओके, किडनी या एड्रेनोक्टॉमी बोलते हैं उसको, दैट इज किडनी रिमूवल किया हमने, इज वन थिंग। सेकंड थिंग हमको लगेगी क्या कि प्लेस द एनिमल ऑन दैट, प्रोसीजर वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, प्लेस द एनिमल ऑन दैट मशीन। इफ इट इज इन्वेजिव तो आपको प्रोसीजर में और स्टेप्स आएगी, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, ब्लड प्रेशर, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज और डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जैसा आपका मशीन होगा वो आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों देगा। रिस्टोलिक रिजल्ट में आएगा चेंज इन द ब्लड प्रेशर विद द ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट है उससे क्या रिजल्ट आएगा। तो इस टाइप का आप करते हो तो आपको वो इजी पड़ेगा। सेम इन विट्रो में कर सकते हैं आप, इन विट्रो के अभी डायूरेटिक्स आपने चैप्टर खोला है, वो सब चैप्टर देखो। पैच क्लैम्प्स टेक्निक से क्या होता है कि आयन का जो ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन है वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर करते तो आपको वही चाहिए था, क्योंकि आपने मैकेनिज्म बोल दी डायूरेटिक की। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डायूरेटिक, दैट इज रीएब्सॉर्प्शन और ऑफ सोडियम और पोटेशियम, वो कम ज़्यादा होता है। वो अगर ट्यूबुल में रह गया वो, या लुमेन ऑफ ट्यूब में रह गया, अगर सोडियम आएगा नहीं अंदर या सोडियम को अंदर डाल दिया गया तो उसके साथ वाटर भी जाएगा। दिस इज़ व्हाट डिटरमाइंड बाय पैच क्लैम्प टेक्निक। पैच क्लैम्प टेक्निक ये जहाँ जहाँ सोडियम पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है वो सब जगह टेस्ट होती है, इंक्लूडिंग नर्व प्रिपरेशन। न्यूरॉन्स के लिए भी अगर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिए पैच क्लैम्प चेक होती है, ओके। तो पैच क्लैम्प से आपको ये मालूम पड़ेगा सोडियम आ रहा है कि जा रहा है, और अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर। अब इसमें क्या हो गया, मैकेनिस्टिक स्टडीज बोलती है। अभी इन वायवो में तो आपको खाली यूरिन आउटपुट मालूम पड़ा, और आपने अगर ये यूरिन एनालिसिस किया तो फिर आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि देर इज ए इंक्रीज इन सोडियम लेवल और इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल और डिक्रीज इन द पोटेशियम लेवल एज कंपेयर टू। तो आप अगर मान लो पैरेलली इसके साथ आप अलग अलग आपने डायूरेटिक दे दिए ग्रुप्स को, और इसका यूरिन एनालिसिस और उसका यूरिन एनालिसिस मैच करोगे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
हेलो हेलो, यस सर। समझ रहा कि नहीं आप लोगों को? यूरिन एनालिसिस में मैंने बोला कि मुझे सोडियम पोटेशियम वगैरह की लेवल मेजर करके दो, ठीक है। अगर मान लो एक ग्रुप को मैंने पोटेशियम स्पेरिंग दिया है ना, एक को पोटेशियम स्पेरिंग दिया, एक आपका टेस्ट का एजेंट है, एक मैंने लूप डायरेटिक दिया, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में फर्क होगा कि नहीं होगा? यूरिन एनालिसिस में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। आएगा। अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक फॉर दैट। डायूरिटिक समझ में आ गया? डायूरिटिक समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब डायूरिटिक्स का टेबल बनाएंगे आप, है ना? हेलो, ओके सर। ठीक है। दिस इज असाइनमेंट फॉर एवरीवन। ये ग्रुप में भी डाल दो। 2 दिन के बाद मैं चेक करूंगा इसको, इन विवो, इन विट्रो, और लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें डालना रेफरेंस। अगर मान लो आपने इससे लिया है, एक्सेल में बनाना, थोड़ा डिटेल होगा तो तुम्हारे ही काम में आएगा, डोंट वरी। और वो उसका लास्ट में रेफरेंस लिखना। अगर होगेल है रेफरेंस तो होगेल लिखना। अगर आपने कोई आर्टिकल से दिया है, आर्टिकल का जहाँ फुल आर्टिकल होगा, है ना, तो फुल आर्टिकल की लिंक आपको पेस्ट करनी है उसमें। समझ गए? यस। तो डायूरिटिक का करो, और जहां नहीं समझा, जो चीज नहीं समझी, बिल्कुल ग्रुप पे डाल दो कि मैं कर रहा था, मैंने कर भी दिया। आप सर ने बोला था टेबल किया, मैंने टेबल कर दिया है, बट मुझे ये चीज समझने में दिक्कत आई, वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। सर हर एक को करना है क्या ग्रुप में से? हेलो, सर हर एक को करना है ना? हाँ, हर एक को करो, और अगर ग्रुप में करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप पर ईमानदारी से, क्योंकि 24-25 बच्चे दिख रहे हैं, जवाब में खाली 5 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी को इंटरेस्ट नहीं है, फिर ग्रुप में करूँगा तो ऐसा नहीं हो कि परेशानी हो। आई एम रेडी फॉर दैट, यू प्लान इट। आप लोग डिस्कस करो, ग्रुप में करोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा मैं आप पे इसलिए छोड़ता हूँ कि आपके लिए जो बेस्ट है वो करो। मेरा एक एम है कि आप ये पढ़ के जब बनाओगे ना, तो आपका ये टॉपिक रीड करके हो जाएगा, समझ के हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिविजुअली करके समझना चाहते हो तो आई एम हैप्पी। अगर आप बोलते हो कि काम ज़्यादा हो जाएगा, हम ग्रुप से करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में करने में एक ही दिक्कत होती है कि जब वो जो काम सबका होता है वो किसी का नहीं होता है ना। वो बीरबल वाली एक कहानी होती है कि बादशाह को बोलते कि आपको चेक करना है लोग कैसे ईमानदार है कि नहीं, बोलते तो कल बोलो कि हौद में अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट आने से पहले हौद में 1 लोटा दूध डाल दो। फिर क्या मिलता है हौद में? पानी पानी मिलता है। सब यही सोचते हैं कि मैंने नहीं डाला तो क्या मिलेगा। सुनिए कि बीरबल की कहानी कभी? सुनिए कि नहीं बीरबल की कहानी? हाँ, ये नहीं सुनी? अच्छा, ये भी बड़ी फेमस कहानी है ये, कि अकबर बादशाह को लगा कि मैं लोगों की ईमानदारी चेक करूं, लोगों का क्या रवैया है वो चेक करूं। बीरबल को पूछते कि ऐसा कैसा करूंगा मैं, तो बोलते कुछ नहीं, अपन एक आइडिया करते हैं, एक बड़ा सारा टैंक बनाते हैं सिटी के अंदर, उसके अंदर, और वो टैंक ढक देते हैं वो, और फिर 3-4 दिन के बाद बोलते कि नाइट में कभी भी रात को आके चुपचाप से 1 लोटा दूध डाल के जाना है, बादशाह को बहुत ज़रूरत है, बादशाह की तकलीफ है, और अगर सब लोग 1-1 लोटा दूध डालेंगे तो उतना एक वो टैंक भर जाएगा जो बादशाह किसी काम में लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडिया है, कुछ लोगों ने एक दूसरे को शेयर की, कुछ ने नहीं की, और लाए ऐसा हुआ कि जब देखा बादशाह ने तो वो बहुत कम दूध था और पानी ज़्यादा था, मतलब जिसको दूध बोल ही नहीं सकते ऐसा था।
वाइटिश कलर का फ्लूइड। तो पूछा ऐसा क्यों हुआ होगा, तो बोले पूछो। तो मालूम पड़ा कि दूध बहुत कम लोगों ने डाला था, बाकी मैक्सिमम लोगों ने देखा था कि रात को कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है, तो मैं पानी भी डालूंगा 1 लोटा, खाली मैं जाते हुए ही दिखते चाहिए, वहाँ डालते हुए दिखना चाहिए, पर वो पानी है कि दूध है कोई नहीं देखेगा, तो मैं पानी डाल दूँ, क्यों दूध डालूँ। तो ये एटीट्यूड वाले लोग तब भी थे, आज ज़्यादा हो गए हैं। तो ग्रुप अगर बनाना चाहते तो चेक करो कि फिर वो दूध और पानी कौन चेक करेगा लोटे का। हाँ, वो मेरे पास टाइम है नहीं। तो यू प्लान इट अकॉर्डिंगली। अगर आप ग्रुप से काम अच्छे से हो सकता है, आई विल बी वेरी हैप्पी। तो यू गॉट दिस आइडिया, कंसेप्ट समझ में आ गई? येस सर. सर मी सांगतो मला बरोबर, म्हणजे तुम्ही सांगितलेलं बरोबर आहे काय एकदा बघा की आम्हाला टब्युलर फॉर्म मध्ये ओगल्स मधून ह्याच्यात माहिती फीड करायची आहे. होगल मधून प्लस रेफरन्स मिळाले ना, होगलच्या पलीकडे जर तुम्ही करू शकत असाल तर रेफरन्स आपल्याला शेवटची टाकायचं होगेल है ना. हो सर. आणि त्याच्यापेक्षा पण आता जर कुठलं दुसरं मिळत असेल आपल्याला तर आपल्याला ते पण टाकता येईल. सर पण सगळी म्हणजे समजा रेफरन्स ओगल म्हणून वापरले तर सगळी माहिती त्याच्यात भेटल ही, म्हणजे आपल्याला जी टेबल बनवायचं त्याची. ते होगलमध्ये आहे ना. जी अडचण आली तर मला सांगा. हो सर. की होगलमध्ये तसंच इन विवोचं करायचं, इन विट्रोचं करायचं आपल्याला आहे ना. असंच एक टेबल इन विट्रोचं करायचं. दोन्ही पण सर. हो. हां, आपल्याला सगळे मॉडेल झाले पाहिजे ना. आपल्याला परीक्षेला कुठलंही मॉडेल येऊ शकतं. हो सर. हां, टेबल त्याच्या फॉर्म मध्ये टेबल फॉर्म मी का करतोय माहिती आहे का? तुमच्या स्वतःच्या अभ्यासाला एकदम सोपं होईल. एवढं मोठं पुस्तक बघून तुम्हाला टेन्शन येईल. हो सर. याचे जर तुम्ही हे आपले 15-20 टॉपिक होतील, हे 15-20चे जर तुम्ही व्यवस्थित प्रिंटआउट काढून व्यवस्थित वाचले ना. आता असं गृहीत धरा की बाय चान्स तुमची एक्झामिनेशन ऑनलाईनच्या ऐवजी रुटीन झाली आणि काही डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न आले, तर ही सगळा जो टेबल आहे, पहिला कॉलम आहे, तो तुम्हाला जर व्यवस्थित डिस्क्राईब करायचा म्हटला, तुम्ही वाचलेला आहे तो आणि याच्यात लिहिलेला आहे, तर एक 5-6 मार्काचा आरामात डिस्क्राईब करू शकाल की नाही करू शकणार? हो सर. नक्की करता येईल ना. हो सर. आणि त्याला महत्त्वाची माहिती काही सुटायला नको. आपण फक्त काय करतो माहिती आहे का, टेबल फॉर्ममध्ये गेल्यानंतर जे वर्ड रिपीटेडली येऊ शकतील ते आपण मायनस केले त्याच्यामधून. आणि ॲनिमल आहे, तू थेरॉटिकल लिहिताना म्हणू शकतो की द ॲनिमल यूज वॉज रॅट. झालं, आपल्याला एकाच सेंटेन्समध्ये एक सेंटेन्स बनला एवढ्यामध्ये. ॲनिमल यूज वॉज द रॅट, द मॉडेल नेम इज सो अँड सो, द इन्स्ट्रुमेंट और द मशीन इन्स्ट्रुमेंट यूज फॉर दिस इज मेटाबॉलिक केज. मेटाबॉलिक केजची जी काही तुम्हाला डिझाईन आठवत असेल ती तुम्ही 2-4 लाईनीत लिहिली तरी तुम्हाला मेटाबॉलिक केज काय माहीत पडतं. इफ एनी केमिकल इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट, दिस इज द केमिकल, आणि त्याचं काय कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते लिहू शकतो. व्हॉट इज द प्रोसिजर, प्लेस द ॲनिमल इन मेटाबॉलिक केज ओके फॉर एक्झॅक्ट फिक्स टाईम, त्याच्यात असेल 24 आवर युजली. कसं द्यायचं त्याला, प्रोव्हाइड वॉटर अँड फूड ओके. अँड मेटाबॉलिक केजच्या डिझाईनमध्ये सगळं आलं तुमचं की मेटाबॉलिक केजमध्ये फूड हे युरिनशी मिक्स होणार नाही, वॉटरचं जे सांडलेलं पाणी स्पिलेज म्हणतो ते मिक्स होणार नाही. तर प्रोसिजरमध्ये देन यू पुट द ॲनिमल, प्रोव्हाइड हिम ॲडिक्वेट फूड अँड दिस वन विच इज ऑलरेडी वेड. फूडचं वेट केलं होतं, द वॉटर व्हॉल्यूम वॉज मेजर्ड and the spillage of food and water is again measured to find the output of or find the food consumption, water consumption. प्रोसिजर याच्याबरोबरच झाली तुमची. अवघड आहे काही? नो सर. हां, ऑब्झर्वेशन काय, युरिन वॉज आउटपुट वॉज मेजर्ड अँड इट इज फाउंड टू बी सो अँड सो ml. किती ml झालं, फूड कन्झम्पशन एवढ्या ग्रॅममध्ये झालं, वॉटर कन्झम्पशन एवढ्या ml मध्ये झालं, युरिन ॲनालिसिसमध्ये सोडियम पोटॅशियमचे काय लेवल होती, झालं. त्याच्यावरनं रिझल्ट काय इंडिकेट होतं तुमचा की द गिवन ड्रग इज आयदर हॅविंग डायऱ्युटिक ॲक्टिव्हिटी और नो ॲक्टिव्हिटी. इफ इट इज हॅविंग डायऱ्युटिक ॲक्टिव्हिटी ऑन द बेसिस ऑफ युरिन ॲनालिसिस वी कॅन एक्सपेक्ट दॅट और वी कॅन थिंक दॅट
इट मे बी हॅव्हिंग पोटॅशियम स्पेअरिंग ॲक्टिव्हिटी बिकॉज युरिनमध्ये आपल्याला पोटॅशियम कमी सापडलं. अलग लक्षात. हो डू यू फील इट इझी ऑर डिफिकल्ट? हॅलो. सध्या इंडिव्हिज्युअली करायला लावा आपल्याला, मग आपण बघू है ना. यू आस्क इंडिव्हिज्युअली, ग्रुपला सांगा मी परत सगळे हे करणार आणि असाइनमेंटला जे मार्क असतील ते इंटरनलशी आपण रिलेट करू त्याला. ओके. एनी डिफिकल्टी इन दिस नाव? एव्हरीथिंग इज ओके? काही अडचणी असेल तर अगदी निश्चिंत विचारा, ग्रुपला टाका ती डिफिकल्टी की हे करताना अशी अशी डिफिकल्टी येते म्हणून. या टेबलमध्ये जर तुम्हाला वाटलं की अजून काही गोष्टी ॲड करायच्या आहेत, यू कॅन ॲड इट. ओके. दिस इज क्लिअर.